تو جناب یہ تھی حمیدہ صاحب کی کہانی، اور حمیدہ صاحب کو ہم نے پہلے بھی یاد کیا ہے اس ایپیسوڈ میں، جس میں ہم نے شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ حمیدہ صاحب کو میرا پرسنلی سلام، ایسے شخص کو پرنام جنہوں نے راہوالی کے ایک سکھ پریوار کو بچایا، اور ایسے شخص کو راہوالی والے تو لوگ یاد کرتے ہی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ پریوار یاد کرتا ہے جس پریوار نے حمیدہ صاحب کے احسان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اب میں آج حمیدہ صاحب کی باتوں کو اس لیے بھی یاد کر رہا تھا، مجھے لگا کہ جو باتیں حمیدہ صاحب کے بھائی نے ہمیں بتائی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹرائل ڈرون شاٹ ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک ڈفرینٹ طرح کا ایک شاٹ لیں، اور اس میں ہم لوگ شاید سکسیس بھی ہوئے ہیں۔ رام رام جی، ست سری اکال، نمستے، السلام علیکم۔ میں تھوڑا کیشو ملتانی تے اج دا ویڈیو کسی دا انٹرویو نہیں، کسی دا آڈیو میسیج ہے۔ میر عبداللطیف صاحب جرمن سے، انہوں نے مجھے کال کیا اور ہمارے ایک ویڈیو کے بارے میں بتایا جو ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا، اور یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں تھا، ایک ایسے بندے کے بارے میں تھا جس نے سکھ پریوار کو بچایا تھا، اور اس درمیان اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس دنیا فانی میں اب نہیں ہے۔ اور یہاں جو پریوار تھا وہ اس کا شکر گزار ہے آج بھی، اور شخص کا نام تھا حمیدہ پہلوان، جس نے اپنی جان پہ کھیل کے 47 کے دنگوں سے ایک پریگننٹ لیڈی کو اس جگہ سے باہر نکالا جہاں پہ اسے خطرہ تھا، اور وہ وہاں لے گیا جہاں اس کا پورا پریوار تھا۔ حالانکہ میرے نئے ویورز جو ہیں وہ یہ کہانی نہیں دیکھ پائے ہیں اب تک، شاید ایسا مجھے لگتا ہے، لیکن میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ضرور کنیکٹ کر پائیں گے کہ آخرکار مسئلہ تھا کیا اور بات چیت اصلی کیا تھی۔ کچھ ٹکڑے میں سنوا دیتا ہوں کہ واستو میں اس ایپیسوڈ کے اندر حمیدہ کو کیوں یاد کیا گیا، اور آج بھی وہ پریوار حمیدہ کا شکر گزار کیوں ہے۔ تو پہلے کچھ ٹکڑے سناتا ہوں۔ تلوندی راہ والے مشرف بڑا کُڑیا ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਟੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਰਦਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਵੜੈਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੈਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਐਸਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਭਲਵਾਨ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੁੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਵੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਾਦੇ 'ਚ ਦੈਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਸੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੀਪਲ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਸੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹੀਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸੀ। ਮਹੀਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਚਾ ਕੀ
ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲਿਆਵੇਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਮੀਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ? ਉਮੀਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ- ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦਾ ਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਉ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ। जिन्होंने सौंफाए ने मेरे नाल वो भी मुसलमान ने। तो जनाब ये वीडियो इतने अरसे के बाद आखिरकार उस परिवार तक पहुंच गया जहां इसे पहुंचना चाहिए था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें अब तक ये एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो वास्तव में उस दिन या उसके बाद इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, वक्त लगता है क्योंकि आप लोग स्लो हैं, आप लोग शेयर लेट करते हैं। लेकिन ये जो शख्स जिसका मैं बात कर रहा हूँ, लतीफ़ साहब का, अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कि जर्मन में बैठे हैं, और इनका एक दिन मुझे फ़ोन आता है, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। देन उनका एक मैसेज आता है और मैसेज में वो जनाब बताते हैं कि जी मैंने आपका वो वीडियो देखा है और बड़ा खुश हुआ हूँ ये जानकर कि हमारे हमीदा साहब को आज हिंदुस्तान में याद किया गया है और वो परिवार उनका शुक्रगुजार है। लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो मैं हमीदा साहब की आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप हमीदा साहब के बारे में वो चीज़ें दुनिया को बताएं। तो बातें कैसी हैं, पहला जो ऑडियो मैसेज आया था वो क्या था, ज़रा सुनते हैं। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा हूँ जो आपने किसी बड़ाई साहब का किया है। मैं भी उसी महल्ले का रहने वाला हूँ जिस महल्ले का ये जिक्र कर रहे हैं, और जो हमीदा जिसका ये जिक्र आपने किया है वो मेरे बड़े भाई थे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आपसे बात हो, और जो उसमें बात बातें 90% बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बाज़ बातों में लगता है उनकी जो मेमोरी है उनका साथ नहीं दे रही। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको कुछ मज़ीद मालूमात दूँ ताकि आपकी ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो पूरी हो जाए। शुक्रिया। तो अगला, मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ और मेरी बाकी फैमिली के अफराद जो अक्सर हैं वो भी जर्मनी में हैं, लेकिन अभी राहवाली में भी हैं। तो बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। शुक्रिया। तो मैंने इन्हें कहा कि जनाब आप हमीदा साहब के परिवार से हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं आपको सलाम करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और ऑडियो मैसेज भेजा। जी मोहतरम, मेरा नाम मीर अब्दुल लतीफ़ है और मैं अब्दुल हमीद साहब जिनका उन बुज़ुर्गों ने जिक्र किया है उनका सबसे छोटा भाई। मैं अब जर्मनी में हूँ। जब मैं अमेरिका में था 1981 में 1981 में, तो उस वक़्त वो एक बरिया में बैठे हुए थे अब्दुल हमीद साहब, जो मलिक हमीद के नाम से मशहूर थे पूरे इलाके में। तो पंचायत हो रही थी, उसमें बैठे हुए थे, तो उस दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गया। ये 1981 की बात है। तो अब फौत हो चुके हैं। इतना फ़िलहाल मैं आपको तारफ़ करवा देता हूँ। और ये मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, ये उनसे छोटे मेरे भाई हैं, ये भी अब फौत हो चुके हैं। उनके साथ ये जो बुज़ुर्ग इंटरव्यू आपको दे रहे हैं, इनके बड़े भाई, गालिबन उनके बड़े भाई हैं। ये 80 के दौर में जिस वक्त मैं अमेरिका था, उस वक्त ये आए थे राहवाली अपने अजीज़ों को मिलने के लिए जो कि इधर ही रहते हैं। तो उनके साथ ये तस्वीरें हैं, ये मैं भिजवा देता हूँ, तो आप उनको दिखा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, ताकि उनकी मेमोरी में भी आ जाए और आपको ये भी पता चले कि
واقعی ان کا خاندان جو ہے اس کا تعلق اسی شہر سے ہے جس شہر سے میرا ہے. بہرحال میں یہ تصویریں فی الحال بھیجتا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیل جیسا کہ ٹیلی فون سے آپ کی بات ہوئی ہے میں ساتھ ساتھ بھجواتا رہوں گا. شکریہ جناب. تصویریں میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور بڑی کمال کی تصویریں ہیں. مجھے رگھویر سنگھ جی نے بتایا تھا کہ وہ ہٹے کٹھے پہلوان تھے، تو یہ تصویروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعی وہ ہٹے کٹھے پہلوان تھے. اور جب وہ یہ تصویر 80 سے پہلے کی ہے، جب وہ ہندوستان سے اپنے مسیحا کہہ لیجئے اس مسیحے کو ملنے گئے تھے جس نے اس پریوار کو بچایا تھا، تو یہ اس دور کی پکچریں ہیں. حالانکہ یہ تو رگھویر صاحب کے بڑے بھائی کی تصویر ہے. اس کے بعد ان کا ایک اور آڈیو میسیج آیا. جو ایک تصویر ہے یہ تو جہاں ان کی زمین تھی، جو کھو تھا ان کا جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ وہاں کی تصویر ہے. نیچے والی جو اوپر والی ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے وہاں ایک چکی ہے، تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو تصویریں ہیں اس وقت کی یادگار جب وہ آئے تھے راوالی اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے. تو اس کے بعد میں آپ کو مزید بھی تصاویر بھجواؤں گا. میں اپنے بڑے بھائی کی بھی تصویر ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کہیں میرے پاس ہے موجود، ملک حمید صاحب کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا. اوکے. ایک اور فوٹو انہوں نے مجھے بھیجی ہے جس میں عبدالحمید عرف حمیدہ کی فوٹو ہے. اور یہ فوٹو میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں میرے رائٹ یا لیفٹ میں پیسٹ کروں گا. مڈل میں جو ہیں وہ حمیدہ صاحب ہیں. اور اس کے بعد میں نے انہیں کہا جی جناب، تصویریں مجھے مل گئی ہیں، بس میں انتظار کر رہا ہوں وہ قصوں کا، ان باتوں کا جو آپ نے کبھی اس سکھ پریوار کے بارے میں سنی ہوں گی یا حمید صاحب سے سنی ہوں گی. اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا خلاصہ کریں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. آن کیمرہ جب بھی کچھ بتاؤں گا. جناب. حالانکہ یہ آڈیو میسیج میرے پاس بہت پہلے آئے تھے اور آج 3 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. کیونکہ میرا فون بیچ میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ میرا فون بیچ میں سارا کا سارا ڈیمیج ہو گیا تھا، ڈیٹا چلا گیا تھا، بٹ کسی طرح میں نے کچھ ڈیٹا ریکور کروایا ہے تو اس سے یہ چیزیں نکلی ہیں. اب میں سنانے جا رہا ہوں وہ بڑی آڈیو فائل جس کے بیچ میں پورا قصہ ہے، پوری کہانی ہے، جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا حمیدہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں. اور جو ہم نے ویڈیو کیا تھا یہیں جھاسا روڈ پر جو گاؤں ہے، اور اس ویڈیو کو میں پھر سے کہوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے ہوا لنک آپ ضرور دیکھیں. اور ایک چیز اور، میرے آس پاس بڑا شور آ رہا ہوگا آج آپ کو. میں کیونکہ کھلے علاقے میں بیٹھا ہوں، میرے بالکل بائیں طرف ریلوے ٹریک ہے تو کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ایک گاڑی گزر جائے تو میں آپ کو ایک آڈیو ٹریک سنوانے والا ہوں. تو جناب یہ ہے وہ آڈیو فائل جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا. جی محترم ملتانی صاحب، میں نے دوبارہ اس کو غور سے سنا ہے اور میں نے نوٹ جو بنائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گھر کا نقشہ جو انہوں نے بتایا ہے 100% ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں شک و شبہ نہیں. نواب اور سردار کو دونوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، جانتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ مجھے ان کے بیٹوں کا نام کا علم نہیں. نواب جو ہیں ان کے بیٹے کا نام، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اس کا نام ہے عبدالقادر، اور باقی ان کی 3 بیٹیاں تھیں. اور عبدالقادر جو ہے وہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، تھا اور ہے. اور آج کل جو کنٹونمنٹ بورڈ کی کونسل ہے اس کا وہ ممبر ہے. اور میرا خیال ہے غالباً 1 یا 2 دفعہ وہ ان کو مل کے بھی آیا ہے وہاں، جہاں تک مجھے علم ہے.
रहीम पहलवान का उन्होंने नाम लिया है। हाँ आगे, हाँ सरदार के 3 बेटे 4 बेटे हैं, अब मुझे नहीं इल्म उनमें से कितने ज़िंदा हैं। एक बेटा जो है वो नवाब जो है, नवाब पहलवान भी उनको कहते थे, और उनका दामाद है यानी जम्बाई है, और एक का बेटे का नाम सरदार के सबसे बड़ा बेटा शरीफ था, उसके बाद सिद्दीक था, वो जल्द फौत हो गया था, और सबको मैंने देखा हुआ है। और उसके बाद नज़ीर है जो नवाब का दामाद है यानी जमाई है, और उसके बाद अशरफ है। आगे उनकी आगे औलादें हैं। मैं भी काफ़ी अर्सा से बाहर हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं जानता। फिर रहीम पहलवान का उन्होंने जिक्र किया है। रहीम पहलवान उन दिनों जब कि पार्टीशन हुई है, लीडर थे उस कस्बा के, रावली के, और मेरे वालिद साहब भी हैं, वो भी उनके साथ इकट्ठे ही काम करते थे, और बाद में भी इकट्ठे इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक ख़ास बात मैं इस सिलसिला में बताना चाहूँगा रावली के सिलसिला में, कि वहाँ अल्लाह के फजल से किसी एक शख्स को भी कत्ल नहीं किया गया या मारा नहीं गया, ना सिख को, ना हिंदू को, ना किसी मुसलमान को। एक मुसलमान जो है वो मारा गया था, रास्ते में किसी को लूटने लगा था, उसका मुझे इल्म है। बाकी कोई, उसकी वजह ये थी कि जमात अहमदिया के जो दूसरे इमाम थे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब, उन्होंने हर उस जगह पे जहाँ उनकी तंजीम थी ये हदायत जारी की थी कि तमाम जो गैर मुस्लिम हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाए, और इसी तरह जो आने वाले मुसलमान हैं उनको भी एक तंजीम के तहत जो है वो इकट्ठा किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। तो उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ एक तंजीम बनाई गई, जिसने तमाम बर्तन और जो भी प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो एक जगह जमा कर ली, जो हिंदू सिख यहाँ से गए हैं उनकी, और फिर वो आने वाले लोगों में ख़ानदान के हालात के मुताबिक तकसीम कर दी। इसका नतीजा है कि पूरे इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी जमात अहमदिया की तंजीम थी और उन्होंने उनकी हदायत पर अमल किया, वहाँ कोई भी अल्लाह के फजल व करम से कत्ल नहीं हुआ था। आगे है, उन्होंने नाम लिया हदायत का। मट्टू जो है जिसका वो जिक्र करते हैं, ये हदायत पहलवान का भतीजा था। मट्टू के बाप का नाम था गंजी पहलवान। ये मारूफ पहलवान हुए हैं, लेकिन गुलाब पहलवान जो है वो बरादरी थी उनकी, लेकिन गुलाब पहलवान जो है उनके 2 बेटे थे, अब्दुर्रहमान, आगे उनके बेटे यानी अब्दुर्रहमान के बेटे पहलवानी करते हुए मैंने खुद देखे हैं, और कक्कू पहलवान जिनका नाम था गुलाम हैदर। कक्कू पहलवान भी अपने वक़्त के मशहूर पहलवानों में थे, और इनका घर गुलाब पहलवान का और हमारा घर बिल्कुल आमने सामने है, एक ही गली में। एक साइड पे उनका घर है, एक साइड पे हमारा घर है। गुलाब पहलवान को भी मैंने देखा हुआ है, बल्कि मेरे वालिद साहब शायर थे, उन्होंने 1-2 नज़में भी उन पे लिखी हुई थी, तो अगर मुझे मिल गई तो वो भी मैं किसी वक्त आपको भिजवा दूंगा। पंजाबी ज़बान की नज़में हैं वो, तो उसमें भी उनका कुछ हाल आपको। जो हमीदा पहलवान उन्होंने जिक्र किया है, वो उनका गुलाब पहलवान का नवासा था, मशहूर पहलवान था गुजरांवाले का, जिसका ताल्लुक़ रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का जो अखाड़ा था उससे था, और यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान का जिनको खिताब मिला था उनके अखाड़ा से वो ताल्लुक़ रखते थे। बाकी मुशर्रफ जो है, इस नाम के मैं किसी पहलवान को नहीं जानता, ये गालिबन उनको गलती लगी है। मट्टू पहलवान के 3 और भाई थे, एक का नाम था फिरोज़, एक का नाम था मिराज, और एक का नाम था
जनाब मेरा फ़ोन आ गया है। सिद्दीक और मट्टू सबसे छोटे थे। इनको भी मैंने देखा हुआ है कुश्ती लड़ते हुए, और इनके साथ खुद मैंने अखाड़ा भी जो वो उनका गुलाब पहलवान का नवासा था, मशहूर पहलवान था गुजरांवाले का, जिसका ताल्लुक रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का जो अखाड़ा था उससे था, और यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान का जिनको खिताब मिला था उनके अखाड़ा से वो ताल्लुक़ रखते थे। बाकी मुशर्रफ जो है इस नाम के मैं किसी पहलवान को नहीं जानता, ये गालिबन उनको गलती लगी है। मट्टू पहलवान के 3 और भाई थे, एक का नाम था फिरोज़, एक का नाम था मिराज और एक का नाम था सिद्दीक, और मट्टू सबसे छोटे थे। इनको भी मैंने देखा हुआ है कुश्ती लड़ते हुए, और इनके साथ खुद मैंने अखाड़ा भी जो है वो मैं खुद भी उसमें कुश्ती करता रहा हूँ, और मैं जब तक पाकिस्तान था वो अखाड़ा कायम था, उसके बाद का मुझे इल्म नहीं। बहरहाल ये है कि इन्होंने सिर्फ मुशर्रफ वाली जो बात है ये उनकी शायद जो है उनकी याददाश्त उसने काम नहीं किया। मुंशी हयात इनको भी मैं जानता हूँ और मैंने देखा हुआ है। ये नवा पिंड साथ ही एक छोटा सा गांव था, अब तो एक ही राहवाली का हिस्सा ही वो बन गया हुआ है। इन सब की तस्वीरें मेरे पास हैं, यानी मुंशी हयात की, रहीम पहलवान की। अगर किसी वक्त आपको ज़रूरत हो तो मैं वो तस्वीरें आपको भिजवा दूंगा। ये हमारे जो काउंसिल है, लोकल काउंसिल, बीडी मेंबर काउंसिल, जो पाकिस्तान में एक दफ़ा निज़ाम कायम हुआ था, उसके मेंबर रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी इनके साथ मेंबर रहे हैं। ठाकर द्वारा का उन्होंने जिक्र किया है। ठाकर द्वारा में मैं खुद मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी वहाँ ठाकर द्वारा में भी हमारी दुकान थी डॉक्टरी की। मीर अला बख्श उनका नाम था मेरे वालिद साहब का। वो शायद इनसे पूछे, इनको याद हो कि वो उनकी हिकमत की दुकान थी, डॉक्टरी की दुकान थी। मैं भी बाद में यही काम करता रहा उनके साथ। और वो ठाकर द्वारा जो है वो बाद में वो तो मकान की सूरत बन गई थी, लेकिन गुरुद्वारा जो था, लेकिन ठाकर द्वारा जो है वो अब का मुझे नहीं इल्म, लेकिन वो मौजूद था उसी वक्त, और उसी में हमारी दुकान थी। वहाँ साथ एक खुई होती थी जहाँ लोग नहाते थे, पानी वगैरह का वहाँ इंतज़ाम था। और सुदागर सिंह का इन्होंने जिक्र किया है, इनको मैं जानता हूँ। मेरे ताया जान चूँकि वकील थे, गालिबन पहले वकील थे राहवाली में, तो फिर प्रैक्टिस के लिए गुजरांवाला चले गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था, और वो मुझे अक्सर, क्योंकि चौधरी लोग थे ये, यानी लीडर थे राहवाली के, ज़िम्मेदार थे, तो वो वहाँ से उनको मुकदमे वगैरह भेजा करते थे। इस सिलसिला में उनका ताल्लुक़ था। और हमीदा जिसका जिक्र किया गया है वो मेरे बड़े भाई थे, और उनकी तरबियत और उनको पाला मेरे ताया जान ने था, जिनका नाम मीर मोहम्मद बख्श एडवोकेट थे वो, और वो प्रैक्टिस करते थे। और उस ज़माना में बार के सदर भी थे, या उससे 1 साल बाद वो सदर मुंतखब हुए थे, बाद में भी रहे हैं। तो उनसे भी उनका जिक्र सुना है, सुदागर सिंह का। वो लड़ाई जिनका इन्होंने जिक्र किया है वो मैंने कई दफ़ा अपने बुज़ुर्गों से, भाइयों से, बाकी जो मिलने वाले उनके थे उनसे सुनी हुई है। बड़ी मशहूर लड़ाई थी जिसमें ये गतका के करतब दिखाए मेरे भाई ने। सुना था कि सब उस लड़ाई में भाग गए थे, ये अकेले थे, वो मुखालिफिन का मुकाबला करते रहे और वहाँ से भागे नहीं। तो
बाकी सब इतना उनका, बाकी क्योंकि बद्दोकी के वो लोग थे जिनसे लड़ाई हुई थी, उनका अपना गांव था, ये दूसरे गांव से गए हुए थे। लेकिन मैंने सुना है कि मलिक हमीद जो है ना, वो अकेला फिर उनके साथ लड़ता रहा। आखिर पुलिस ने आके फिर उनको अलग अलग किया, और बाकी उन्होंने कुछ हालात बताए हैं जो मैंने सुने हैं, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। सुनहरे वाले खूह को भी मैं जानता हूँ। इसी तरह कोई और, हाँ जी, हदायत और गंजी पहलवान, हदायत पहलवान, गंजी पहलवान, ये आपस में भाई थे। गंजी पहलवान का बेटा था मट्टू, उसका असल नाम रफ़ीक था। मट्टू पहलवान बिल्कुल उनका नाम था, और रफ़ीक उनका असल नाम था। मट्टू उसको कहते थे सारे। लेकिन ये सिर्फ मुशर्रफ वाली जो बात है ना, ये बहरहाल उनके कोई गलती लगी है। कोई और बात पूछने वाली हो तो ज़रूर बताएं। मेरे में इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमारे ऐसे तल्लुकात थे अपने बड़े भाई के साथ, कि मैं उनसे कोई ऐसी बातें पूछता या करता, क्योंकि हमारी इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। आगे उनके 2 बेटे थे, आबिद और खालिद, दोनों फौत हो चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे भी। तो आगे उनके हैं नवासे, पोते वगैरह वो हैं, लेकिन उनके बेटे दोनों फौत हो चुके हैं। और आज भी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। यहाँ अगर जर्मनी में मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उनको जानने वाला हो, तो जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं उनका भाई हूँ, तो वो एहतराम से खड़े हो जाते। रावली में जब भी गया हूँ उनका नाम लें तो लोग आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। रहीम पहलवान जो हैं, वो भी एक बहुत ही फाइन और नफीस इंसान थे। उनको मैं जानता हूँ। उनको मैंने पहलवानी करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनका नाम मशहूर था, रहीम पहलवान। वो चेयरमैन रहे हैं हमारी काउंसिल के, लेकिन बहुत ही नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। उनके भी आगे बच्चे नवासे पड़वासे मौजूद हैं वहाँ। इसके अलावा कोई बात ऐसी वो पूछने वाली तो ज़रूर बताएं। ये मैं तस्वीर इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा और उसमें निशानदेही कर दूंगा रहीम पहलवान को भी और मुंशी हयात को भी, और फिर आप उनको दिखा यकीनन वो भी देख के तो ज़रूर खुशी महसूस करेंगे और एक याद उनकी ताज़ा हो जाएगी। बहरहाल इंशाल्लाह कोई आपका सवाल मज़ीद हो तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत, जो मैंने नोट बनाए थे उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया। जनाब हमीदा साहब तो थे ही ऐसे कि उन्हें हर कोई सलाम करता था, और आज जब वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है तब सब उनको याद करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर मैं जर्मनी में होता हूँ और अगर कोई मुझे राह वाली का मिल जाता है और मैं कहता हूँ कि मैं हमीदा का छोटा भाई हूँ, तो वो बंदा खड़ा हो जाता है। तो जनाब ये थी हमीदा साहब की कहानी। और हमीदा साहब को हमने पहले भी याद किया है उस एपिसोड में जिसमें हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि हमीदा साहब को मेरा पर्सनली सलाम। ऐसे शख्स को प्रणाम जिन्होंने राहवाली के एक सिख परिवार को बचाया, और ऐसे शख्स को राहवाली वाले तो लोग याद करते ही करते हैं। यहाँ पे भी वो परिवार याद करता है जिस परिवार ने हमीदा साहब के एहसान को याद रखा हुआ है। अब मैं आज हमीदा साहब की बातों को इसलिए भी याद कर रहा था, मुझे लगा कि जो बातें हमीदा साहब के भाई ने हमें बताई हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रायल ड्रोन शॉट है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम एक डिफरेंट तरह का एक शॉट लें और उसमें हम लोग शायद सक्सेस भी हुए हैं।
हालांकि कुछ ना कुछ ऑडियो आपको इसके फैंस की मिल रही होगी, इसकी हवाएं आपको सुनाई दे रही होंगी, लेकिन ये वीडियो जो है ये आधा ड्रोन पे हुआ है, और जो मेरे साथ ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं वो हैं कार्तिक। कार्तिक इसको घूम के दिखा देगा अपने आप को, क्योंकि कार्तिक हमारे यहाँ पे एक अच्छे ड्रोन फ्लायर हैं, और कई बार मैं भी उन्हें कहता हूँ कि यार मुझे सिखा दो। तो फ़िलहाल ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ड्रोन से शूट किया जा रहा है, ये आप अब तक समझ ही चुके होंगे। इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे मेरे पास ऑडियोज़ हैं, जिन ऑडियोज़ को मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मैं जिन लोगों को अब याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ वो चेहरे याद आ रहे हैं। समीना आपा, मीना आपा कनाडा वाली, एंड हमारे अजमल साहब जो मेरे पहले व्यूवर हैं, जो मुझे अब कहते हैं कि केशव तू मसरूफ़ हो गया है, एंड ज़हीर भाई, और हमारे हाजी इसहाक साहब। मेरे को अब बहुत ये तो थे वहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग मुझे याद आ रहे हैं वो हैं मंजीत सहगल साहब, महेंद्र पहूजा जी, और शिव जी मनी माजरा वाले, पुष्विंदर जी जो पुलिस में हैं, और बहुत सारे वो लोग जो हर बार कमेंट करते हैं। रवि कक्कड़ जी हैं, और कालड़ा जी हैं, संदीप जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस को याद करूं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरे हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। और अब मैं एक लास्ट में एक चीज़ और बताने जा रहा हूं कि एक आजकल नावल पढ़ रहा हूं, एक और त्रासदी, हिंदुस्तान हरियाणा की तरफ से एक नावल है, वो आजकल पढ़ रहा हूं, उससे आप देखिए। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। जानता हूँ कि फ़ैन्स की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको मैं रिमूव करूँ ऑडियो सॉफ्टवेयर से। तो फ़िलहाल के लिए शुक्रिया। हम लोग ये अब ट्राई करके देख रहे हैं कि काश ड्रोन में भी हम लोग ऑडियो अच्छी दे पाएँ, ड्रोन शॉट्स में भी अच्छी ऑडियो दे पाएँ। अब हम लोग आपको दूर किए जा रहे हैं, आप हमसे दूर होते जा रहे हैं, और अब आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, हमारे नॉइज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम आपसे बहुत दूर चले गए हैं। हमारा पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा। ये अब तक का पिछले 2-2.25 सालों में अब तक का सबसे सेपरेट, सबसे डिफरेंट, सबसे पसंद किया जाने वाला शॉट होगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लकड़ियों का भंडार है, तो ये एरिया था जहाँ मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा ये वाला पोर्शन शूट कर लूँ, और हमने किया। एंड बाकी भी आपको दिखाऊंगा कुछ और चीज़ें। अगर ये ड्रोन शॉट्स कामयाब रहे तो हम लोग आइंदा ड्रोन को शूट्स में यूज़ किया करेंगे। और जैसे कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप हमें हमारे खेत दिखाएं, गांव दिखाएं, तो आइंदा ये ड्रोन का ज़रूर सहारा लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, ड्रोन से हम लोग वो चीज़ें दिखा सकते हैं, हम लोग वो वाली जगहों पर पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम लोग वैसे नहीं जा सकते। तो ड्रोन हमारी हेल्प करेगा। तो बाकी तो आप बताएंगे कि अच्छा था या नहीं था, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। एंड आज का शूट का पूरा क्रेडिट मेरा डीओपी, मेरा ड्रोन फ्लायर कार्तिक। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कार्तिक भी रिफ्यूजी है। बाय।